السلام علیکم خواتین و حضرات. فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا 26واں لیکچر. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کنٹرول اکاؤنٹس کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی. کنٹرول اکاؤنٹس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، اور وجہ اس کی یہ بتائی تھی کہ جیسے کاروبار جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس کی ٹرانزیکشنز، ڈیلی ٹرانزیکشنز جو ہیں، روزمرہ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، بہت ساری ہو جاتی ہیں وہ. اس وجہ سے دو ایریاز خاص طور پہ ڈیٹرز یعنی وہ لوگ جن سے ہم نے پیسہ لینا ہے، اور کریڈیٹرز وہ لوگ جن کو ہم نے پیسہ دینا ہے، وہ بھی نمبر ان کے جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اس لیے ان ساروں کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ جنرل لیجر میں رکھنا ذرا مشکل کام ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہم ایک سیپریٹ بک رکھتے ہیں، ایک سیپریٹ لیجر رکھتے ہیں جو کہ میمورینڈم ہوتا ہے، یعنی اس کا ڈبل انٹری بک کیپنگ کے اندر کوئی شیئر نہیں ہوتا یا اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. وہ صرف ایک ریکارڈ کی خاطر ایک علیحدہ کہ جی ہر آدمی کی، ہر اس پارٹی کی جس سے ہماری لین دین ہو رہی ہے اس کی تفصیل رکھنے کے لیے ایک علیحدہ کھاتا یا ایک علیحدہ کتاب ہم کھول لیتے ہیں. ورنہ جنرل لیجر کے اندر جو ہے وہ ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کو کنٹرول اکاؤنٹ ہم کہتے ہیں کہ جی ڈیٹرز کا کنٹرول اکاؤنٹ ہے، کریڈیٹرز کا کنٹرول اکاؤنٹ ہے. اس میں جتنی لین دین ہے ان لوگوں کے ساتھ وہ ڈیٹرز اکاؤنٹ کے اندر یا کریڈیٹرز اکاؤنٹ کے اندر وہ ٹوٹل روز کی، ہفتے کی، جو اس کو فروخت کیا ہے، جو اس سے وصول کیا ہے، اس سارے کی ڈیٹیل جو ہے وہ اس میں سمرائزڈ فارم میں آ جاتی ہے. اور اس جنرل لیجر کے اندر جو ڈیٹرز اور کریڈیٹرز کے کنٹرول اکاؤنٹس ہیں ان کو دیکھ کر ہم کسی وقت بھی یہ پتا کر سکتے ہیں کہ مجموعی طور پہ کاروبار نے کتنا پیسہ لوگوں سے لینا ہے اور کتنا پیسہ دینا ہے. تو یہ بیسک وجہ ہے کہ جی ہم ڈیٹرز کا ایک کنٹرول اکاؤنٹ اور کریڈیٹرز کا ایک کنٹرول اکاؤنٹ لیجر میں کھولتے ہیں. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی یہ کنٹرول اکاؤنٹس صرف ان دو ڈیٹرز اور کریڈیٹرز کے لیے ضروری نہیں، بلکہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں یہ اکاؤنٹس آپ سٹاک کے لیے بھی کھول سکتے ہیں، آپ پروفٹ اینڈ لاس کا کوئی آئٹم جو ہے اس کے لیے بھی کھول سکتے ہیں. اگر کاروبار میں اس قسم کی ضرورت پیش آ جائے کہ جی کسی پروفٹ اینڈ لاس کا کی کوئی بھی مد جو ہے اس کے آگے بریک ڈاؤن کافی ہے. مثال کے طور پہ ریپیئرز اینڈ مینٹیننس ایک چیز ہوتی ہے. ریپیئرز اینڈ مینٹیننس بلڈنگ کی بھی ہو سکتی ہے، وہیکلز کی بھی ہو سکتی ہے، آفس اکوپمنٹ کی بھی ہو سکتی ہے، اور بہت ساری چیزوں کی ریپیئرز اینڈ مینٹیننس ہو سکتی ہے. لہذا آپ شاید یہ چاہیں کہ جنرل لیجر کے اندر صرف ایک کنٹرول اکاؤنٹ ہو جو ٹوٹل پکچر ریپیئرز اینڈ مینٹیننس کے بارے میں دے دے، لیکن ساتھ یہ جو ڈیٹیل ہے کہ جی بلڈنگ یا آفس اکوپمنٹ یا وہیکلز یا فرنیچر فکسچرز، ان سب کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ شاید علیحدہ رکھنا چاہیں تو اس کے لیے آپ ایک سبسیڈری ریکارڈ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. وہ سبسیڈری ریکارڈ ڈبل انٹری کا حصہ نہیں بنے گا. آج کے لیکچر میں بھی ہم کنٹرول اکاؤنٹس کو ذرا زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. جیسے میں نے کہا کہ یہ کنٹرول اکاؤنٹس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ نمبر آف ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، اور جیسے وہ نمبر آف ٹرانزیکشنز بڑھتی ہیں تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی مزید اس کا ریکارڈ جو ہے، تفصیل کا ریکارڈ جو ہے ان ٹرانزیکشنز کے بارے میں ان کو علیحدہ رکھا جائے، تاکہ اس طریقے سے جو ٹرانزیکشنز پہ یا جیسے ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں ان کی ریکارڈنگ کرنا بھی نسبتاً آسان ہو جاتا ہے، اور ان کے ٹوٹل بھی مینج کرنا جو ہے وہ
आसान हो जाता है, आज हो जाते हैं। अब जबकि हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं अकाउंटिंग के लिए भी, तो ये बहुत सारे जो किताबें या रजिस्टर जो हैं, इनको रखने की कोई जरूरत नहीं रही है। उसकी वजह यह है कि जी जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, जहां से डाटा की एंट्री की जा रही है, वही सोर्स डॉक्यूमेंट से आप कोडिंग के जरिए, कोडिंग आप इस तरीके से करते हैं, अकाउंट्स की कोडिंग इस तरीके से करते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट से वही मकसद जो है वो हल हो जाता है और आपको 2 या 3 या 4 या 6 किताबें मजीद जर्नल लेजर के अलावा जो है वो नहीं लिखनी पड़ती। बहरहाल ये जो किताबें, ये सब्सिडरी बुक्स जो हैं, ये जैसे मैंने पहले कहा कि ये डबल एंट्री का हिस्सा हरगिज नहीं होते। ये सिर्फ एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड है। ये सिर्फ हमारे मजीद इतला और इंफॉर्मेशन के लिए डिटेल्स का रिकॉर्ड रख रहा है कि जी जितनी सेल हुई, मिसाल के तौर पे क्रेडिट पे सेल अगर हमने की लोगों को, तो वो किन किन के साथ की और हर इंडिविजुअल पार्टी ने हमारा कितना पैसा देना है। तो यकीनन एक लिहाज से ये भी जरूरी पता करना जरूरी है हमारे लिए कि हर इंडिविजुअल ने हमारे कितने पैसे देने हैं, और फिर मजमूई तौर पे भी हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे कितना पैसा जो है वो हमारे कस्टमर्स ने हमें देना चाहिए या हमारे सप्लायर्स को हमने देना है। तो ये रिकॉर्ड जो है या ये मेमोरेंडम रिकॉर्ड है, इसका मेन डबल एंट्री के साथ ताल्लुक नहीं। जब मैं ये बात कहता हूं कि डबल एंट्री के साथ ताल्लुक नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जी जो डेबिट और क्रेडिट हो रहा है वो सिर्फ उन अकाउंट्स के दरमियान हो रहा है जो जनरल लेजर का हिस्सा है। जनरल लेजर में अगर आप डेटर्स कंट्रोल अकाउंट खोल रहे हैं तो डेटर्स कंट्रोल अकाउंट और कैश बैंक या सेल्स अकाउंट या रिटर्न गुड्स रिटर्न अकाउंट, इसके दरमियान ट्रांजैक्शंस, इसके दरमियान डबल एंट्री हो रही है। इंडिविजुअल अकाउंट्स के साथ डबल एंट्री नहीं हो रही, यानी इंडिविजुअल डेटर्स के साथ नहीं हो रही, पार्टी ए के साथ नहीं हो रही, बी के साथ नहीं हो रही, सी नहीं हो रही। वो तफसील है उस तमाम चीज की जो कि डेटर्स के कंट्रोल अकाउंट में रखा जाता है। तो ये बात जो है ये आप याद रखिए। अब हम यही कंट्रोल अकाउंट्स को देखते हैं डिटेल के अंदर, और पर्टिकुलरली सेल्स और डेटर्स के हवाले से। सेल्स एंड डेटर्स के हवाले से जब हम बात करते हैं, 3 किताबें रखी जाती हैं। इन 3 किताबों में एक सेल्स डे बुक है, एक सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बुक है, और तीसरा डेटर्स सब्सिडियरी लेजर है। ये 3 किताबें हैं। सेल्स डे बुक क्या होती है? सेल्स डे बुक जो है उसमें हम इनवॉइस वाइज हर सेल जो हमारी होती है उसका हम एक इनवॉइस काटते हैं, इनवॉइस या बिल काटते हैं। वो इनवॉइस या बिल जो है वो इस किताब में उसकी तफसील दर्ज होती है, और रोज की तफसील जो है वो जिस वक्त आप उसमें लिख लेंगे तो उसको ऐड करेंगे जिस वक्त, तो वो आपको ये बता देगा कि आज के रोज टोटल सेल्स क्रेडिट पे आपने क्या किए हैं। सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बुक जो है ये उस वक्त रखी जाती है कि जी जब जो आपने माल बेचा वो कस्टमर वापस अगर उसमें से कुछ कर दे, इस किस्म के वाकयात बहुत ज्यादा हो, उसका रिकॉर्ड अलहदा से रखना जरूरी हो, तो फिर इसको जो है ये जो वापसी जो होती है गुड्स की, माल की, आपको बिके हुए माल की जो वापसी होती है, उसको हम एक अलहदा रजिस्टर या अलहदा किताब में रखते हैं जो कि सेल्स। उसमें भी रोज के हिसाब से जो माल वापस हुआ उस माल का उसका टोटल करेंगे हम, तो हमें पता चल जाएगा कि आज के रोज कितना माल हमारे पास वापस आया। लेकिन ये तभी रखा जाता है कि जब ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हों, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी तो उसमें से
इस बात का इम्कान ज्यादा है कि माल वापस भी आ सकता है। तीसरी जो किताब है जिसका मैंने जिक्र किया वो डेटर्स सब्सिडियरी लेजर है, और ये डेटर्स सब्सिडियरी लेजर है कि जिसमें पार्टी वाइज रिकॉर्ड रखा जाता है या उनका अकाउंट रखा जाता है। ये हर इंडिविजुअल कस्टमर का जो है वो अपना खाता होता है, पर्सनल खाता होता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये पर्सनल खाता जो है ये भी जरूरी है, क्योंकि हमें पता करना ये लाजिम है कि जी हमने किन किन लोगों से पैसे जो हैं वो वसूल करने हैं। अब डेटर्स कंट्रोल अकाउंट और जनरल लेजर के हवाले से कैसे इंफॉर्मेशन जो है वो चलती उसमें आती है, ये जरा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो जाहिर है कि जी डेटर्स कंट्रोल अकाउंट है, तो उसमें ओपनिंग बैलेंस यानी पिछले साल से, पिछले अकाउंटिंग पीरियड से जो भी है उससे जो फिगर आगे आप लेके आ रहे हैं, जो पिछले महीने के आखिर में लोगों ने पैसे आपको देने थे और अभी अगले महीने की पहली तारीख को जाहिर है कि वो पेमेंट नहीं किया। अगर 31 तारीख को या 30 तारीख को वो पैसे लोगों ने नहीं दिए हुए थे तो जाहिर है कि पहली की सुबह को तो नहीं दे चुके होंगे वो, लिहाजा वो फिगर जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, वो ओपनिंग बैलेंस कहलाता है और ये जो है ये उसमें शो होगा। इसी तरीके से जो आपका डेटर्स सब्सिडियरी रिकॉर्ड है या सब्सिडियरी लेजर है, यानी जो इंडिविजुअल पार्टी के अकाउंट्स हैं, उसमें भी हर पार्टी का जो इंडिविजुअल सम आउटस्टैंडिंग है, जो उसने इनफरादी तौर पे आपको पैसा अदा करना है और जो अदा नहीं किया हुआ पिछले महीने की आखिरी तारीख तक या पिछले अकाउंटिंग पीरियड की आखिरी डेट तक, वो अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस हो गए। अब अगर डेटर्स कंट्रोल अकाउंट जो कि जनरल लेजर में आपने रखा है, उसमें अगर एक फिगर आ रही है, तो जो सब्सिडियरी लेजर हैं, सब्सिडियरी लेजर में जितनी पार्टीज हैं उन सब पार्टीज के ओपनिंग बैलेंसेस को आप ऐड जिस वक्त करेंगे तो उनका टोटल बराबर होना चाहिए जनरल लेजर के में जो डेटर्स का कंट्रोल अकाउंट है उसके टोटल के साथ। अगर वो नहीं है बराबर, तो इसका मतलब यह है कि जी जो फिगर आपने कंट्रोल अकाउंट में लिखी है वो गलत है, या इनफरादी अकाउंट्स के अंदर जो बैलेंसेस लिखे हैं, हर पार्टी का जो इंडिविजुअल ओपनिंग बैलेंस लिखा है वो उसमें कोई गलती है, क्योंकि ये दोनों का टोटल जो है या जो कंट्रोल अकाउंट जो लेजर के अंदर है उसमें जो फिगर है वो बिल्कुल वही होनी चाहिए जो कि उन पार्टीज का ओपनिंग फिगर है, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट में जो फिगर है वो है ही उन तमाम इंडिविजुअल बैलेंसेस का टोटल, तो फर्क नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जितनी और ट्रांजैक्शंस भी इसमें की जाएंगी उनको अगर तमाम को इनफरादी अकाउंट से उठा के टोटल किया जाए तो वो फिगर जो कंट्रोल अकाउंट में लिखी गई हुई है उसके बराबर होना चाहिए। बहरहाल ये बात आगे चल के दोबारा करेंगे। अब जो डेटर्स कंट्रोल अकाउंट है और जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं डेटर्स सब्सिडियरी लेजर के अंदर, इसमें क्या रिकॉर्ड होता है? क्या इसमें तमाम सेल रिकॉर्ड होती? नहीं, कैश सेल जो है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती। हम सिर्फ क्रेडिट सेल्स यानी जो सेल क्रेडिट पे की गई है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं सेल्स डे बुक के अंदर, और उस डे बुक का टोटल जो है वो हर कुछ मुकर्ररा अरसे के बाद आप डेटर्स कंट्रोल अकाउंट जो कि जनरल लेजर में है उसमें आप ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये क्रेडिट सेल्स के बारे में बात है। अगर कैश में आप सेल करते हैं तो उसका डेबिट जो है वो आपको कैश तो वसूल हो गया
اس سے لینے نہیں پیسے آپ نے, اور سیلز کو آپ کریڈٹ کر دیتے ہیں. ویسے بہت دفعہ جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تمام سیل کی ٹرانزیکشن جو ہے آپ کے جو ریگولر کسٹمر جن کو کیش پہ بھی آپ سیل کر رہے ہیں, جن کو آپ کریڈٹ پہ بھی کر رہے ہیں, ان تمام کی انٹری جو ہے وہ ان اکاؤنٹس کے ذریعے پاس کی جانی چاہیے, یعنی کنٹرول اکاؤنٹ کے تھرو بھی ہونی چاہیے اور سبسیڈیری لیجر کے بھی ہونے چاہیے. لیکن فی الوقت ہم اسی بات پہ اکتفا کرتے ہیں کہ جی کیش سیل جو ہے اس کو ہم نہ ڈے بک میں لکھ رہے ہیں اور نہ ہم اس کو جو ہے وہ سبسیڈیری لیجرز میں لکھ رہے ہیں یا ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ جنرل لیجر میں لکھ رہے ہیں. اب آئیے سیلز ریٹرن پہ. سیلز ریٹرن جو ہے یہ اس کے لیے علیحدہ کتاب ہے, اس میں بھی آپ جہاں جہاں سے جیسا جیسا مال واپس آتا ہے وہ ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیل لکھتے ہیں اور اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیٹرز کے کنٹرول اکاؤنٹ میں اور انڈیویجل اکاؤنٹس میں اس کی انٹری کر دیتے ہیں. اب جو کیش ریسیو ہو رہا ہے یا چیک ریسیو ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ جی اس کا ڈیبٹ سائڈ جو ہے وہ تو کیش بک میں جائے گی یا بینک بک میں جائے گی. وہاں پہ تھوڑی سی پرابلم آتی ہے. وہ پرابلم کیا ہے اس کا میں ابھی ذکر کروں گا, لیکن فی الوقت یہ کہنا کافی ہے کہ جی ڈیبٹ سائڈ جو ہے, ریسیٹ جو ہے پیسے کی کسٹمر سے, کریڈٹ کسٹمر سے, وہ آپ کے کیش بک میں یا بینک بک میں آ گئی اور وہاں سے اس کا ٹوٹل جو ہے وہ ڈیٹرز کے کنٹرول اکاؤنٹ میں, ٹوٹل ریسیٹ ایک روز میں جو بھی آئی وہ ٹوٹل کیا ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ کنٹرول اکاؤنٹ میں جائے گا. اور انڈیویجل جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ انڈیویجلی سبسیڈیری لیجر کے اندر ہر پارٹی کے اپنے اپنے کھاتے کے اندر ریکارڈ ہوگا کہ کس سے کیا وصول ہوا. تو ایک طرف مجموعی فگر ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ میں آئی جو کہ جنرل لیجر میں ہے, اور دوسری طرف یہ کہ وہیں سے ہم ایک فگر لکھ رہے ہیں ہر پارٹی سے جو وصولی ہوئی وہ اس کے پرسنل اکاؤنٹ کے اندر جو کہ ڈیٹرز سبسیڈیری لیجر میں مینٹین کیا جا رہا ہے وہاں پہ ہم اس کو لکھ رہے ہیں. اور کلوزنگ بیلنس تو جیسے اوپننگ بیلنس ہے کہ جی مہینے کے آخر میں, پیریڈ کے آخر میں, اکاؤنٹنگ پیریڈ کے آخر میں جو پیسے ابھی لوگوں نے ادا کرنے ہیں وہ بیلنس ہوتا ہے اور اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. مسئلہ ہمارا ذرا کیش اور بینک بک سے ہے. وہ کیا ہے, وہ اس کو کس طریقے سے ہم کیش بک اور بینک بک کو لکھیں گے وہ ہمیں بتاتے ہیں, لیکن فی الوقت ذرا سیلز کی ریکارڈنگ کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن. سیلز ڈے بک ہم نے کہا کہ آپ لکھیں گے. سیلز ڈے بک روزنامچہ ہے, سیلز کا روزنامچہ ہے کہ جی ہر پارٹی سے کس انوائس کے تحت آپ کس ڈیٹ میں کتنے ویلیو کی سیل کی, کتنی سیل کی آپ نے. یہ آپ کے سامنے ہے سلائیڈ. اس میں ہم نے 3 ٹرانزیکشنز آپ کو دکھائی ہیں کہ جی ایک 10,000 کی سیل ہوئی 1 جنوری کو, 15,000 کی سیل ہوئی 15 جنوری کو سیل ہوئی 12,500 روپے کی, اور 30 جنوری کو 15,000 روپے کی سیل ہوئی, اور ٹوٹل سیل جو ہے وہ 37,500 روپے کی ہو گئی. اب چیز یہ ہے کہ جی مہینے کی پوری سیلز جو ہے یہاں پہ جو یہ طریقے سے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پورے مہینے کے سیلز کا ٹوٹل جو ہے وہ ہم ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہیں اور سیلز کے اکاؤنٹ میں لے جا رہے ہیں. سیلز کو ظاہر ہے ہم کریڈٹ کریں گے اور ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کو ہم ڈیبٹ کریں گے کہ یہ ماہ جنوری کی سیلز ہوئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی جو انڈیویجل ٹرانزیکشنز ہیں ان کو کیسے ریکارڈ کیا جائے گا. تو اس کے لیے ہم سبسیڈیری لیجر کی طرف جائیں گے, اور سبسیڈیری لیجر میں ہم نے اے کا اکاؤنٹ بھی کھولا ہے, بی کا اکاؤنٹ بھی کھولا ہے, سی کا اکاؤنٹ بھی کھولا ہے. ان کی انفرادی جو ٹرانزیکشنز ہیں کہ اے کو ہم نے 10,000 روپے کا مال فروخت کیا, وہ اس کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے ڈیبٹ ہو جائیں گے. بی کو 12,500 کا مال فروخت کیا, وہ بی کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہو جائے گا, اور سی کے اکاؤنٹ میں 15,000 روپے ڈیبٹ ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے جو انڈیویجل ٹرانزیکشنز ہیں وہ
डेटर्स सब्सिडियरी लेजर में आ गई और जो टोटल सेल्स थी महीने की वो कंट्रोल अकाउंट में चली गई। अब अगर इन तीनों अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शंस आई उनको हम ऐड करें तो उनका टोटल भी 37,500 है और जो डेटर्स कंट्रोल में हम फिगर लेके गए वो भी 37,500 थी। सेल्स रिटर्न की बात कर लें। सेल्स रिटर्न है आपके पास बुक जो है उसमें ए से, जिसको आपने पहले फरोख्त किया था कुछ माल 1 जनवरी को, उससे 15 जनवरी को 1,000 रुपए का माल वापस हुआ। 20 जनवरी को ए ही से 500 रुपए का मजीद माल वापस हुआ। 25 जनवरी को बी, जिसको आपने 15 जनवरी को कुछ बेचा था, उसने 2,500 रुपए का माल जो है वो आपको वापस कर दिया। पूरे महीने की ट्रांजैक्शंस, आप रोज की ट्रांजैक्शंस, अगर रोज 200 ट्रांजैक्शनें हैं, 50 ट्रांजैक्शनें हैं, 100 ट्रांजैक्शनें हैं, आप रोज का टोटल भी डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में ले जा सकते हैं। यहां पे फैसला यह है कि जी पूरे महीने का टोटल जो है वो हम ट्रांसफर करेंगे। अब सेल्स रिटर्न बुक के हिसाब से इस महीने, जनवरी के महीने में 4,000 रुपए का माल जो है वो वापस हुआ। अब ये 4,000 का जो फिगर है ये क्रेडिट किया जाएगा डेटर्स कंट्रोल अकाउंट जो कि जनरल लेजर में है और डेबिट किया जाएगा सेल्स अकाउंट को जो जनरल लेजर में है। सेल्स को इस वजह से किया जाएगा कि आपने गो 37,500 का माल बेचा था, लेकिन उसमें से 4,000 रुपए का माल जो है वो आपके पास वापस हो गया। लिहाजा आपकी उस महीने की सेल जो है वो हकीकतन 37,500 की नहीं बल्कि 37,500 माइनस 4 33,000 रुपए की सेल है। और इसी तरीके से आपने ये 33,500 रुपए चूंकि क्रेडिट पे सेल की, लिहाजा ये 33,500 रुपए आपने डेटर से लेने हैं। ये मजमूई फिगर है। अब किस से क्या लेना है उसको देख लेते हैं। उसके लिए हम डेटर्स सब्सिडियरी लेजर में जाते हैं। ए का अकाउंट जब हम देखते हैं तो ए ने हमें जनवरी के महीने में 1,500 रुपए का माल वापस किया। 1,500 रुपए का माल वापस हुआ। ए के अकाउंट में 2 ट्रांजैक्शंस क्रेडिट साइड पे आपको नजर आ रही हैं कि जी 15,000 रुपए का एक दफा माल वापस हुआ, 500 रुपए का दूसरी दफा वापस हुआ और उसको टोटल सेल हमने किया था 10,000 रुपए। अब 10,000 में से 1,500 रुपए आप जब निकाल देंगे तो बाकी रह गया 8,500 रुपए कि 8,500 रुपए ए ने आपको देने हैं। बी का अकाउंट देखेंगे हम। बी के अकाउंट में जो सेल्स रिटर्न बुक के अंदर जो एंट्री की हुई है वापसी की वो 2,500 रुपए की थी। वो अमाउंट बी के अकाउंट को क्रेडिट होगा। सी के साथ कोई इस किस्म का मसला नहीं हुआ और कोई उससे माल वापस नहीं आया, लिहाजा उसके अकाउंट में जितनी की सेल थी वही रकम वैसे ही बरकरार रही। अब अगर इन तीनों अकाउंट्स को जो सब्सिडरी लेजर में है कि जी ए का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्या था, वो 10,000 माइनस 1,500 8,500 रुपए था। बी का बैलेंस जो है वो 10,000 रुपए रह गया था और सी को जो टोटल सेल की थी वो 15,000, क्योंकि वहां से माल कोई वापस नहीं आया था। तो इन तीनों को जिस वक्त हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आता है वो 33,500 रुपए का आएगा। और ये वही फिगर है जो कि आपके डेटर्स के कंट्रोल अकाउंट जनरल लेजर के अंदर थी। क्यों कि जनरल लेजर के अंदर आपने 37,500 की सेल के अगेंस्ट आपने 4,000 रुपए जो वापस हुआ माल, उस एक फिगर को आपने क्रेडिट किया था। 37,500 माइनस 4,000 बकिया बैलेंस डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में 33,500, जिसका सबूत यह है कि जी इंडिविजुअल अकाउंट्स के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उनका टोटल भी 33,500 रुपया बनता है। लिहाजा किताबें सही लिखी गई। अब
ہم بات کرتے ہیں ریسیٹس کی، یعنی جس وقت یہ ڈیٹرز ہمیں پیسہ دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اس وقت کیا ہوگا؟ اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اس وقت ہمیں ایک پرابلم ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی آج تک ہم نے جو آپ سے بات کی کیش بک اور بینک بک کے حوالے سے، اس میں ہم نے یہ کہا کہ آپ یا تو ایک صفحہ کتاب میں ریسیٹ کی سائڈ کے لیے رکھ لیجئے اور دوسرا صفحہ جو ہے وہ پیمنٹ کے لیے رکھ لیجئے، یا ایک ہی صفحے پہ آپ 2 کالمز بنا لیجئے کہ ایک ریسیٹ کے لیے ہے اور دوسری پیمنٹ کے لیے. لیکن اب یہاں پہ ذرا ہماری ضروریات جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں. ضرورت ہماری کیا ہے؟ ضرورت ہماری یہ ہے کہ جی ہمیں یہ پتا چلے کہ ڈیٹر سے ایک روز میں، ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر جو بھی ہم تعین کرتے ہیں، مہینہ ہے، ہفتہ ہے، ایک روز ہے، اس میں ٹوٹل ریسیٹ کتنی ہوئی، کتنا ٹوٹل پیسہ ان سے وصول ہوا. جب انڈیویجول ٹرانزیکشن ہم انٹر کر رہے ہیں کیش بک یا بینک بک کے اندر، تو ظاہر ہے کہ کس سے پیسہ آیا یہ چیز تحریر کر رہے ہیں. سو انڈیویجول ریفرنس تو ہمیں مل رہا ہے، لیکن ان سب کو یا تو ہر روز شام کو بیٹھ کے ہم پہلے اس کا ٹوٹل کر لیں ساری چیز کا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر ایک کے انڈیویجول کھاتوں میں لکھنا شروع کر دیں. تو اس لیے بہتر یہ نہیں کیا کہ اگر ہم ایک اور کالم ریسیٹ سائڈ پہ ایڈ کر لیں، ٹوٹل کے کالم کے ساتھ اگر ہم ایک کالم اور ایڈ کر لیں جو کہ اینالائز کر دے، جو ٹوٹل کالم کے اندر فگرز آ رہی ہیں اس کی تفصیل بیان کر دے کہ جی ڈیٹر سے کتنا پیسہ آیا، کسی اور سے کتنا آیا، وغیرہ وغیرہ، تو آسانی ہو جائے گی. جس وقت ہم وہ فگر یا ٹرانزیکشن کیش بک بینک بک میں لکھ رہے ہوں گے، اسی وقت ہم وہ فگر صحیح کالم میں ڈال سکتے ہیں، اور یوں ہمیں پتا چل جائے گا کہ جی آج کے روز ڈیٹرز کے اندر جب ہم اس کا ٹوٹل کریں گے کالم کا کہ جی اس سے ٹوٹل پیسہ ڈیٹر سے ہمیں کتنا حاصل ہوا یا کتنا ملا. تو اس طریقے سے یہ جو کیش بک ہوتی ہے جس کے اندر کالمز ایڈ کر دیے جاتے ہیں ٹوٹل کالم کے ساتھ، اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے اس کو کلمنر کیش بک کہا جاتا ہے. یہ ریسیٹ سائڈ پہ بھی کالمز بن سکتے ہیں اور پیمنٹ سائڈ پہ بھی کالمز جو ہے وہ بن سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ جو کچھ ریسیو کر رہے ہیں یا جو پیمنٹس کر رہے ہیں، جو ادائیگیاں کر رہے ہیں، ان کی تفصیل آپ صرف وہاں پہ بیان علیحدہ علیحدہ لکھنا چاہتے ہیں. ٹوٹل آپ جب کریں گے، وہ ٹوٹل جو ہے وہ آپ ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیں گے کہ جی اتنا ٹوٹل پیسہ آج کے روز یا اس ہفتے میں یا اس مہینے میں یہ ٹوٹل پیسہ آیا جو اس کالم کا ٹوٹل ہوگا، اور وہ وہاں پہ کریڈٹ ہو جائے گا. جہاں تک انڈیویجول ٹرانزیکشنز کی بات ہے، وہ جیسے جیسے لکھی جائیں گی ویسے ویسے ان کو ان کے انفرادی اکاؤنٹس میں انٹر کیا جائے گا. ریفرنس نمبر اس اکاؤنٹ کا جو کہ انڈیویجول کو ہم نے سبسیڈیری لیجر میں دیا ہے، وہ ہمارے پاس کیش بک یا بینک بک میں لیجر فولیو کے کالم میں لکھا جائے گا. لہذا ریفرنس ہمیں مل جائے گا کہ جی کس اکاؤنٹ میں کیا چیز جو ہے یا کتنا اماؤنٹ جو ہے وہ لکھنا ہے. نام پارٹی کا جو ہے وہ ہم تحریر کریں گے کہ کس سے وصول کیا، تو تمام تفصیل جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوگی. تو اس کا سیمپل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس وقت کہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. یہ کیش بک ہے، اس میں ٹوٹل کالم موجود ہے. تو پہلا جو انٹری ہے اس میں 10,000 روپے کی، وہ کسی سے آئی ہوگی لیکن ڈیٹرز سے نہیں آئی، لہذا ڈیٹرز کے کالم میں اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا یا اس کو دوبارہ سے نہیں لکھا گیا. اسی طریقے سے دوسری انٹری جو ہے وہ بھی کسی اور سے آئی، ڈیٹرز سے نہیں آئی. تیسری انٹری جو ہے وہ انٹری جو ہے 5,000 روپے کی، وہ ہمیں اے سے ریسیو ہوئی. اے ہمارا کسٹمر تھا، ابھی ہم نے اس کا حساب کتاب لکھا
जनरल लेजर भी उसका एंट्री की और सब्सिडरी लेजर में भी उसकी एंट्री की। अब जो है वो उससे हम कैश रिसीव कर रहे हैं और कैश रिसीव कर रहे हैं 5,000 रुपया। तो ये 5,000 रुपया टोटल की कॉलम में आया कैश बुक या बैंक बुक में, और उसको साथ ही एक्सटेंड कर दिया या दोबारा से उसको लिख दिया डेटर्स के कॉलम में। इसी तरीके से बाकी ट्रांजैक्शंस में से भी जो जो डेटर से पैसे आए उनको हमने डेटर्स के कॉलम में लिख दिया, और बाकी जो फिगर्स हैं वो चूंकि दूसरे लोगों से या मुतफरिक मामलात से हासिल हुए, डेटर से नहीं हुए। बहरहाल हो सकता है वो कैश सेल हो सकता है वो कुछ और चीज हो, इसलिए उसको दूसरे कॉलम में हम लिखते हैं, डेटर्स के कॉलम में नहीं लिखते। अब टोटल जो है वो डेटर्स के कॉलम का वो ये हमें बताता है कि 10,000 रुपया वसूल हुआ। ये 10,000 रुपए की फिगर जो है, इस फिगर को हम कहां एंटर करेंगे? हम जनरल लेजर में डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में इस फिगर को 10,000 रुपए की क्रेडिट साइड पे एंटर करेंगे। कैश बुक में कैश या बैंक बुक में उसका डेबिट मौजूद है, कैश और बैंक बुक भी जनरल लेजर का हिस्सा है, लिहाजा डेबिट एंट्री तो हो गई। क्रेडिट एंट्री जो है वो डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में 10,000 रुपए हमने क्रेडिट कर दिया। यूं डबल एंट्री कंप्लीट हो गई। अब रह गई बात कि साहब इस 10,000 की तफसील क्या है। उसकी तफसील जो है वो ये कि जी ए से भी कुछ पैसे वसूल हुए, बी से भी हुए और सी से भी हुए। अब फिर हम दोबारा कैश बुक पे जाते हैं और जैसे जैसे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल अकाउंट्स के अंदर लिखते हैं। मसलन ए के अकाउंट में हमने 15 तारीख को और हमने रिसीव किया पैसा 6,000 रुपए का और 1,000 रुपए का। दो रिसीट्स हमारे पास हुई और ये दोनों रिसीट्स जो हैं ये हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दी। बी के अकाउंट के अंदर हमारे पास जो वसूली हुई वो 2,000 रुपए की थी, वो हमने बी के अकाउंट में लिख दी। सी से इसी तरीके से 1,000 रुपया वसूल हुआ, वो हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब ए की दोनों रिसीट्स 7,000 रुपए, बी की 2,000 की रिसीट 9,000 रुपए और सी की 1,000 रुपए की रिसीट, टोटल इसका हुआ 10,000। जनरल लेजर के अंदर जो डेटर्स कंट्रोल अकाउंट है उसमें जो हमने रिसीट की टोटल फिगर लिखी थी वो भी 10,000 रुपए लिखी थी। अब अगर हम डेटर्स कंट्रोल अकाउंट पे वापस जाएं तो हम देखते हैं कि वहां पे टोटल सेल जो थी जनवरी के महीने की वो 37,500 की थी, जो कि हमने डेबिट किया था। हमें गुड्स रिटर्न हुए 4,000 रुपए के जनवरी के महीने में, वो हमने क्रेडिट किए। और अब हमने जो एंट्री की वो रिसीट की एंट्री की 10,000 रुपए की, वो भी हमने क्रेडिट कर दी। बैलेंस ड्रॉप किया जनवरी के आखिर में तो डेटर्स कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस जो है वो 23,500 रुपए आता है। अब इनफरादी अकाउंट्स को देखिए। ए के अकाउंट में अब जो बैलेंस आया, इन तमाम एंट्रीज डेबिट और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो है 1,500 रुपए। यानी जनवरी के आखिर में ए ने हमें 1,500 रुपए देने हैं। बी के अकाउंट के अंदर बैलेंस जो आ रहा है हमारे पास वो 8,000 रुपए का आ रहा है और सी के अकाउंट में हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो 14,000 रुपए का आ रहा है। तो इन तीनों को जिस वक्त ऐड करेंगे तो टोटल जो है वो 23,500 रुपए आता है, जो कि बराबर है उसी फिगर के, उसी क्लोजिंग बैलेंस के जो कि डेटर्स कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है। यूं आपकी बुक्स जो हैं वो बैलेंस्ड बुक्स कहलाएंगी और यह साबित होगा कि जो डेटर्स कंट्रोल अकाउंट के अंदर जो फिगर आ रही है वो सही नुमाइंदगी कर रही है, क्योंकि तमाम तफसील जो है वो उससे मैच करती है। तो ये बात तो हुई कि डेटर्स और डेटर्स कंट्रोल अकाउंट के बारे में। अब क्रेडिटर्स की जहां तक बात है और क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट की जहां तक बात है तो वो भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा। फर्क सिर्फ इतना है
कि यहां पे हम पेमेंट्स कर रहे हैं और हम चीजें खरीद रहे हैं। सेल्स में या डेटर्स में तो हम चीजें बेच रहे थे। क्रेडिटर्स का जिस वक्त बात होती है, क्रेडिटर्स का हवाला आता है, तो उस हवाले से हम चीजें खरीद जो रहे हैं उनका हिसाब किताब है। अब इसके लिए भी आपको 3 इजाफी किताबें रखनी पड़ती हैं। एक तो परचेज डे बुक है। परचेज डे बुक जो है उसमें जिस तरीके से आप सेल्स का रोज नामचा रख रहे थे, ये परचेजेस का रोज नामचा है कि जी रोज क्या क्या आपने किस किस से क्या क्या परचेज किया, वो आप तमाम तफसील उसमें रख देते हैं। शाम को उसको जमा कर देते हैं, टोटल आपको फिगर मिल जाती है। वो फिगर आप क्रेडिटर्स के कंट्रोल अकाउंट में आप क्रेडिट कर देंगे तो वो फिगर परचेजेस की हो गई कि जी आप या अदायगी कितनी है। इसमें भी ख्याल ये रहे कि जी जो आपने परचेजेस किए हैं ये और जो इस अकाउंट में आ रहे हैं वो सिर्फ क्रेडिट के परचेजेस हैं, कैश की परचेजेस फिर इसमें शामिल नहीं किए जाती, क्योंकि वो डायरेक्टली जो है वो स्टॉक को डेबिट कर दी जाती है और कैश को क्रेडिट कर दी जाती है या बैंक को क्रेडिट कर दी जाती है। जो क्रेडिट पे सेल होती है या परचेज होती है, वो परचेज जो है वो यहां पे रिकॉर्ड होगी। वैसे अगर आप चाहें तो डे बुक में कैश सेल का भी एक कॉलम बना सकते हैं कि वहां पे उसका कैश सेल का भी हिसाब रहे और क्रेडिट सेल का भी हिसाब रहे, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आमतौर पे इसको इस्तेमाल जो है वो क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शंस को इनवॉइस वाइज क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शंस को या सेल की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। परचेज रिटर्न बुक जो है वो उसी तरीके की है जैसे सेल्स रिटर्न है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ यहां पे हम माल जो है वापस कर रहे हैं और जो भी वैल्यू है वो वापस किए गए माल का वो हम वैल्यू इसमें लिख रहे हैं कि जी हमने इतने वैल्यू का माल जो है वो वापस कर दिया। क्रेडिटर्स सब्सिडियरी लेजर रह गया, तो वो सब्सिडियरी लेजर जो है वो उसी तरीके से रखा जा रहा है जिस तरीके से अभी मैंने आपको डेटर्स सब्सिडियरी लेजर के बारे में बताया। तफसील इन अकाउंट्स में क्या होती है या क्या नहीं होती वो आपके सामने है। ये भी तफसील जो है वो उसी तरीके से है जैसे कि सेल्स के सिलसिले में थी। फर्क सिर्फ ये है कि यहां पे हम जो परचेजेस हमने क्रेडिट पे की हैं, जहां पे हमें उधार पे हमने माल खरीदा है, ये हम उसकी बात कर रहे हैं, उनको रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हैं। और चेक और कैश पे कर रहे हैं, अब रिसीव नहीं कर रहे, पेमेंट कर रहे हैं और क्लोजिंग बैलेंस उसी तरीके से निकाल रहे हैं जैसे दूसरे अकाउंट्स में निकाला जाता है। तो ये तो इंफॉर्मेशन है कंट्रोल अकाउंट्स की। अब उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जब हम देखते हैं कि जी परचेज डे बुक है, परचेज डे बुक में हमारे पास 3 ट्रांजैक्शंस हैं अप्रैल के महीने में। एक एक्स से है, एक वाई से है, एक जेड से है। एक्स से हमने 15,000 रुपए का माल खरीदा, वाई से 20 का और जेड से 10,000 रुपए का। टोटल खरीद जो हुई क्रेडिट के ऊपर इस माह में वो 45,000 रुपए की है। जो कंट्रोल अकाउंट है, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट जो है जनरल लेजर के अंदर, उसमें हम क्रेडिट करेंगे 45,000 रुपए। क्यों कि ये हमने पैसा अदा करना है। इसका डेबिट कहा जाएगा। इस पैसे के इव्ज हमने कुछ खरीदा, लिहाजा वो जो कुछ खरीदा वो हमारे स्टॉक अकाउंट्स में जाएगा। तो डेबिट जो है वो स्टॉक अकाउंट में होगा। क्रेडिट क्रेडिटर्स के कंट्रोल अकाउंट में और डेबिट स्टॉक के अकाउंट में। अब ये तो हो गई बात कि जब हम उधार पे माल खरीद रहे हैं। हम इसी डिटेल को कि किससे क्या क्या कुछ खरीदा हमने, उस डिटेल को भी हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। वो हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं क्रेडिटर्स सब्सिडियरी लेजर के अंदर। अब एक्स का अकाउंट हमने सब्सिडियरी लेजर में खोला, वाई का अकाउंट हमने सब्सिडियरी लेजर में खोला और जेड का अकाउंट हमने सब्सिडियरी लेजर में खोला। 15,000 रुपए की
परचेज हमने क्रेडिट पे की एक्स से, तो एक्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 20,000 रुपए की परचेज हमने की वाई से, तो वाई का अकाउंट जो है वो 20,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। और 10,000 रुपए की परचेज हमने क्रेडिट पे की जेड से, तो जेड का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। यूं इंडिविजुअल अकाउंट्स सब्सिडियरी लेजर के अंदर उनमें भी तफसील ट्रांजैक्शंस की लिखी गई। इनका टोटल 45,000 रुपए बनता है, जो कि बराबर है टोटल कंट्रोल लेजर के अंदर, कंट्रोल अकाउंट के अंदर, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट के अंदर वहां पे हमने फिगर जो टोटल लिखी थी वो 45,000 लिखी थी। इन तीनों अकाउंट्स का टोटल भी 45,000 रुपए ही बनता है, लिहाजा सही ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। एक बात आपने नोट की होगी कि जब मैं कंट्रोल अकाउंट की बात कर रहा हूं और जनरल लेजर की बात कर रहा हूं तो मैं साथ डेबिट और क्रेडिट की बात करता हूं, लेकिन जिस वक्त सब्सिडियरी लेजर की मैंने बात की तो यहां पे मैंने ये नहीं कहा कि आपने फुला अकाउंट को डेबिट किया और फुला अकाउंट को क्रेडिट किया। मैं यहां पे कहता हूं कि एंटर किया, क्रेडिट साइड पे एंटर किया या डेबिट साइड पे एंटर किया। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि सब्सिडियरी लेजर के अंदर कोई डबल एंट्री बुक कीपिंग नहीं, ये एक रिकॉर्ड है, डिटेल्ड रिकॉर्ड है। आप यूं समझ लें कि जो कंट्रोल अकाउंट है उसका अक्स है। सिर्फ ये है कि जी वो अक्स जो है उसके 6, 10, 50, 100, 200 कॉपीज है, मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं वो कॉपीज। उन सबको इकट्ठा कर लें आप तो कंट्रोल अकाउंट का टोटल फिगर्स बन जाती हैं। लिहाजा सब्सिडियरी के अंदर डबल एंट्री बुक कीपिंग की बात नहीं हो रही। डबल एंट्री बुक कीपिंग की बात जो है वो जनरल लेजर तक ही महदूद है। अब हम रिटर्न्स की बात करते हैं। जब हम माल जो हमने खरीदा था उसको हमने वापस किया, उसकी बात करते हैं। रिटर्न आउटवर्ड बुक या परचेज रिटर्न बुक वो हमने रखी है। हमने एक्स और वाई को इस महीने में माल वापस किया 13,000 रुपए का, 5,000 का एक्स को, 8,000 का वाई को। 13,000 की फिगर जो है वो हम डेबिट करेंगे क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट जो जनरल लेजर के अंदर है उसमें डेबिट कर देंगे। और वही फिगर जो है, चूंकि जो स्टॉक हमने खरीदा था, जो माल खरीदा था, उसी माल में से वापसी हुई, लिहाजा स्टॉक रिड्यूस हो गया, कम हो गया, लिहाजा स्टॉक के अकाउंट को हम फिर 13,000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। तो यूं डबल एंट्री जो है वो कंप्लीट हो गई जनरल लेजर के अंदर। अब तफसील इसकी जो है सब्सिडियरी लेजर के अंदर लिखनी है, वो तफसील हम ऐसे लिखेंगे कि जी एक्स के अकाउंट में 5,000 रुपए को डेबिट करेंगे और वाई के अकाउंट में 8,000 रुपया डेबिट कर देंगे। तो यूं रिटर्न की जो तफसील जो है वो लिख दी गई। अब आइए पेमेंट्स की तरफ। अब पेमेंट के लिए जैसे मैंने शुरू में कहा, जिस वक्त मैं आपको कैश बुक और बैंक बुक, कलमनर कैश बुक और बैंक बुक के बारे में बता रहा था, उसी तरीके से आप पेमेंट साइड के ऊपर भी इजाफी कॉलम्स ऐड कर सकते हैं टोटल को एक्सप्लेन करने के लिए कि जी टोटल पेमेंट जो आपने की वो किस किस मद में की या किस किस को की। तो परचेजेस आप क्रेडिटर्स का एक कॉलम बना सकते हैं, आप यूटिलिटीज का एक कॉलम बना सकते हैं, आप इस तरीके से बहुत सारे मुख्तलिफ कॉलम बना सकते हैं कि जी जो पेमेंट कर रहे हैं वो किस मेजर हेड में कर रहे हैं, किस मद में कर रहे हैं, वो आप चीज जो है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कॉलम्स आप ऐड कर सकते हैं। तो कलमनर जो है वो आपकी कैश बुक बन जाती है। अब हम वो कैश बुक देखते हैं कि जी पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड में ट्रांजैक्शंस आ रही हैं जहां पे हमने ए को भी पेमेंट की, बी को भी पेमेंट की, सी को भी पेमेंट की। ए को हमने 2,500 रुपए पेमेंट की, वो हमने उस कॉलम में डाल दी जो कि जिसको हमने क्रेडिटर्स का टाइटल दिया है। तो 2,500 रुपए टोटल में भी आ गए और क्रेडिटर्स की कॉलम में भी आ गए। रिसीव्ड पेड टू बी जो है उसमें 1,500 रुपए की फिगर है, उसको पेमेंट की हमने, वो पेमेंट जो है क्रेडिटर को की, वो क्रेडिटर्स के कॉलम में एक्सटेंड हो गई। सी को इसी तरीके से पेमेंट की 1,500 रुपए की, वो 1,500 रुपए क्रेडिटर्स के कॉलम में एक्सटेंड कर दिया। तो टोटल जो पेमेंट की वो 5,500 रुपए की पेमेंट हमने की। अब इसको हमने इस टोटल को जो है वो
क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट में डेबिट किया और कैश और बैंक बुक में तो ऑलरेडी क्रेडिट मौजूद है, डबल एंट्री कंप्लीट हो गई। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस सब्सिडियरी लेजर के अंदर जो हमने रिकॉर्ड करनी है उनको देख लें। एक्स को हमने पेमेंट किया 2,500 रुपए, तो एक्स के अकाउंट में डेबिट साइड पे हम एंट्री कर देंगे 2,500 रुपए की। वाई के अकाउंट में डेबिट कर देंगे 1,500 रुपए को, और अगर जेड को तो हमने पेमेंट ही कोई नहीं की, यही पेमेंट्स थे हमारे शायद, या जेड को भी हमने 1,500 रुपया पेमेंट किया, जेड के अकाउंट को भी जो पेमेंट किया वो हम जेड के अकाउंट को डेबिट कर देते। तो इस तरीके से तमाम एंट्रीज जो कैश या बैंक बुक में पेमेंट की थी वो भी हमने क्रेडिटर्स के सब्सिडियरी लेजर के अंदर हर पार्टी के अकाउंट को कर दी। अब बैलेंसिंग कर लें। जब हम कंट्रोल अकाउंट को बैलेंस करते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड को, परचेज जो हमने किया था या जो क्रेडिट पे परचेज किया था उसका टोटल था 45,000 रुपए। हमने माल जो वापस किया वो था 13,000 रुपए का। 5,500 रुपए की हमने पेमेंट्स की, टोटल डेबिट का हुआ 18,500 रुपए, क्रेडिट साइड का टोटल है 45,000 रुपए, दोनों का डिफरेंस जो है वो 26,500 रुपए है। 26,500 रुपए गो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, लेकिन कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट पीरियड में क्रेडिट साइड पे कि हमने ये 26,500 रुपया टोटल अदायगी अभी करनी है अप्रैल के आखिर में। किस किस को करनी है उसके लिए हम सब्सिडरी लेजर में जाते हैं, एक्स का अकाउंट देखते हैं। एक्स से हमने 15,000 का माल खरीदा, 5,000 का माल वापस किया, 2,500 उसको पेमेंट की, 7,500 15,000 में से निकाल दीजिए, 7,500 रुपया एक्स को अभी अदा करना है। वाई का इसी तरीके से हिसाब जो बनता है उससे ये पता चलता है कि 10,500 रुपए उसको अभी हमने अदा करने हैं, और जेड के अकाउंट से हमें पता चलता है कि 8,500 रुपए जो है वो हमने अदा करने हैं। अब जब इन तीनों फिगर्स को हम ऐड करते हैं 7.5, 10.5 और 8.5, तो हमारे पास टोटल फिगर जो आनी चाहिए वो 26,500 रुपए ही आनी चाहिए, जो कि क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट का है। और अगर इन तीनों फिगर्स को आप ऐड करेंगे तो वही टोटल आ रहा है 26,500। यूं आपकी क्रेडिटर साइड की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो भी कंप्लीट हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमने डेटर्स और क्रेडिटर्स के कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडियरी अकाउंट में एंट्रीज की। हमने देखा कि जी उनको कैसे मेंटेन किया जाता है। चंद एक बातें इन हवाले से इस हवाले से रह गई कि जी डिस्काउंट्स जो हम लेते हैं या डिस्काउंट्स जो हम देते हैं उनका क्या होगा, वो बातें जो है वो हम अगले लेक्चर के अंदर आपके साथ करेंगे। इस वक्त यही काफी है कि ये डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट्स जो हैं इनमें किस तरीके से एंट्री होती है, इजाफी कॉलम्स कैश बुक और बैंक बुक में कैसे क्यों ऐड किए जाते हैं, और सब्सिडियरी लेजर्स ज़ैली किताबें जो है उनके रखने का मकसद क्या है, ये आपको समझ आ गया होना चाहिए। शुक्रिया।